السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایک پارلیمانی اور 18 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے تواریخ کا اعلان، 12 جون کو رائے دی، انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے نتائج جاری، 58% مجموعی نتیجہ، 23 میں سے سپلیمنٹری امتحانات، فیس کی آخری تاریخ 5 مئی۔ کرن کمار ریڈی کو منمانی فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے، ویٹ میں کمی سے متعلق چیف منسٹر کے فیصلے پر وزیر لیبر کو اعتراض۔ اور کانگریس اور تلگو دیشم سربراہوں کے درمیان لفظی جنگ میں شدت، غیر معیاری زبان استعمال نہ کرنے چندرا بابو نائیڈو کو بوتسا کا مشورہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے 18 اسمبلی اور ایک پارلیمانی نشست کے ضمنی انتخابات کے لیے تواریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان حلقہ جات میں 12 جون کو رائے دہی ہوگی اور 15 جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ انتخابی تواریخ کے اعلان کے ساتھ ہی تمام حلقوں میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ انتخابی اعلامیہ 18 مئی کو جاری کیا جائے گا۔ ریاستی الیکٹورل آفیسر بھنور لال کے مطابق پرچہ جات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 25 مئی مقرر کی گئی ہے، جبکہ 26 مئی کو پرچوں کی تنقیح ہوگی۔ 28 مئی کو نام واپس لینے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے جملہ 5405 پولنگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ انتخابی تواریخ کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی حلقہ جات میں پرجا پدھم پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ضمنی انتخابات کے تواریخ کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ منگل کو صدر پردیش کانگریس بی ستیہ نارائنا نے کیمپ آفس پہنچ کر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ستیہ نارائنا منگل کی رات یا چہارشنبے کی صبح دلی کے لیے روانہ ہوں گے۔ امکان ہے کہ صدر پی سی سی دلی میں پارٹی اعلیٰ کمان کے ساتھ ضمنی انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے انتخاب پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 یا 3 دن میں کانگریس امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سال دوم کا نتیجہ 58.43% رہا۔ اس بار بھی لڑکیوں نے لڑکوں پر اپنی سبقت برقرار رکھی۔ لڑکیوں کا نتیجہ 61.25% اور لڑکوں کا نتیجہ 55.95% رہا۔ ریاستی وزیر ثانوی تعلیم پارتھا سارتھی نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ مئی کی 23 تاریخ سے سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز ہوگا اور اس کے لیے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 5 مئی مقرر کی گئی ہے۔ فیس میں جرمانے کے ساتھ ادائیگی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ 5 جون سے پریکٹیکل امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ اس سال انٹرمیڈیٹ سال دوم کے امتحانات میں 9,45,694 طلباء نے شرکت کی تھی، جس میں سے 4,94,758 طلباء نے کامیابی حاصل کی۔ تاہم اس مرتبہ نتائج میں گزشتہ سال کے مقابلے قریب 5% کی کمی ہوئی ہے۔ نتائج میں ضلع کرشنا 74% کے ساتھ سر فہرست رہا، جبکہ وشاکھاپٹنم دوسرے مقام پر آیا۔ حیدرآباد کا نتیجہ 59% رہا۔ نظام آباد 43% کے ساتھ سب سے آخری مقام پر رہا۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ میمورنڈم آف مارکس 28 اپریل تک متعلقہ کالجز کو روانہ کر دیے جائیں گے۔ پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے 7 مئی تک طلباء درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ فزکس کے پرچے میں نصاب سے ہٹ کر آئے سوالات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال پر وزیر ثانوی تعلیم پارتھا سارتھی نے بتایا کہ نصاب کے مطابق ہی پرچہ تیار کیا گیا تھا، لیکن بعض کالجز کی جانب سے اپنی جانب سے تیار کیے گئے سوالات کی وجہ سے طلباء کو مشکلات پیش آئیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ آئندہ اس سلسلے میں نظر رکھی جائے گی۔
మేము మొన్న అనౌన్స్ చేసినట్లు కాలేజ్ వైజ్ రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ వెబ్సైట్లో పెట్టడం జరిగింది. మరి సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ కూడా అదే విధంగా వెబ్సైట్లో ఏ కాలేజీలో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారో, ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా సెకండ్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ కూడా వెబ్సైట్లో పెడతాం. ఫస్ట్ ఇయర్ రేపు పెట్టేస్తాం. इसी दौरान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी ने इत्तला दी है कि सेकेंड ईयर इम्तिहानात के दौरान सेंटर नंबर 08998 के सिविक्स पेपर के निशानात बोर्ड को मौसूल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इस मरकज़ पर इम्तिहान लिखने वाले तलबा के नताइज रोक लिए गए हैं। सेक्रेटरी ने बताया कि जैसे ही बोर्ड को निशानात हासिल होंगे नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला सविता रेड्डी ने शमशाबाद के इलाके में सर्व शिक्षा अभियान स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये स्कूल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाएगा और तलबा की बेहतर तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में ऐसे कई स्कूल्स कायम किए जाएंगे। अवामी मसाइल से वाकिफियत और अहम कामों की निशानदही के ताल्लुक से जारी प्रजापथम प्रोग्राम के सिलसिले में मजलिसी कायदीन के दौरे जारी हैं। पेश तफसीली रिपोर्ट। रुकन असम्बली अफसर खान ने मोहम्मदी लाइन के कम्युनिटी हॉल में मुनक़दा प्रजापतन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार के अलावा महकमे बल्दिया, बरखी और आबरसानी के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुकामी अफराद ने प्रोग्राम में शरीक होने से पहले कलेक्टर और एमआरओ डाउन डाउन के नारे लगाए। ये नारेबाजी करीब आधे घंटे तक चलती रही। अफसर खान ने कलेक्टर हैदराबाद नटराजन गुलजार से कहा कि सिर्फ प्रोग्राम मुनक़द करने से अवाम के मसाइल हल नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो दरख्वास्त गुजारों के मसाइल की यकसुई करे, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें तयखुन दिया है कि वो अवामी मसाइल की यकसुई की कोशिश करेंगे। अलावाजी उन्होंने महकमे बल्दिया, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों को भी इंतबाह दिया कि वो मसाइल हल करने में कोताही ना करें। उन्होंने बाज़ राशन शॉप्स के मालिकान को भी इंतबाह दिया कि वो अवाम को बर वक्त राशन फ्राहम करे। वाज़ेह है कि अफसर खान ने इससे कबल मुनक़दा प्रजापतन प्रोग्राम में मुतालिका ओहदेदारों की अदम मौजूदगी की वजह से शिरकत नहीं की थी। प्रोग्राम में शिरकत के बाद अफसर खान ने कलेक्टर के हमरा गोलकोंडा हॉस्पिटल रवाना हुए। कलेक्टर हैदराबाद ने हॉस्पिटल में गैर हाजिर 2 डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी हल्के हुसैन यलम में प्रजापतन प्रोग्राम मुनक़िद किया। शाह मंजिल फंक्शन हॉल में रुकन बल्दिया जुल्फ़िकार अली और महकमे जात, बल्दी, बरखी, आबरसानी और सिविल सप्लाईज के ओहदेदार और अवाम की कसीर तादाद अपने अपने मसाइल के सिलसिले में शरीक थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बल्दी हल्के छावनी में प्रजापतन प्रोग्राम के सिलसिले में पैदल दौरा किया। रुकन बल्दिया, मुर्तज़ा अली और मुख्तलिफ महकमे जात के आला सरकारी ओहदेदार दौरे में साथ मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली ने अवाम के मकानात पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनके मसाइल से ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। जामबाग बल्दी डिवीजन में प्रजापतन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन ने महकमे बल्दी, बरखी और आबरसानी के ओहदेदारों के साथ अवामी मसाइल की समाअत की। नज़ीरुद्दीन ने इस मौके पर रिसाले अब्दुल्ला और सिख कॉलोनी का भी दौरा किया। जामबाग डिवीजन में 2,50,000 रुपए के ड्रेनेज लाइन और 3.5 लाख रुपए मालियत के पीने के पानी की पाइपलाइन के तामीरी कामों का भी नज़ीरुद्दीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हल्का असम्बली याकुतपुरे के बल्दी हल्के तालाब चंचलम में रुकन बल्दिया वजाहत अली खान ने सरकारी ओहदेदारों के साथ प्रजापतन के सिलसिले में पैदल दौरा किया। इस हल्के में कचरे की निकासी, ड्रेनेज के मसाइल और पानी की किल्लत की शिकायत की गई। रुकन बल्दिया ने लापरवाह सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को मनमानी फैसलों से गुरेज करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने यह बात कही। वैट में कमी से मुताल्लिक़ वज़ीर आला की जानिब से लिए गए फैसले को नागेंद्र ने तकलीफदा करार दिया। उन्होंने कहा कि वैट में इजाफे के बाद काबीना के इजलास में उन्होंने जब इसमें कमी के लिए नुमाइंदगी की तो उन पर नुक्ताचीनी करते हुए ये कहा गया था कि हुकूमत को नुकसान पहुंचने जैसे मशवरों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर लेबर ने सवाल किया कि आज दूसरों की नुमाइंदगी पर वैट में कमी क्यों की गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर शायद ये भूल गए हैं कि वैट में कमी के लिए भी लिए गए फैसले को काबीना की मंजूरी ज़रूरी है।
उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में चीफ मिनिस्टर को कोई भी फैसला लेने से पहले सीनियर से मुशावरत करनी चाहिए। మేము రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కాలేదు, మిగతా వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు అవుతుంది అంటే అది తప్పుడు సంకేతాలు పోతాయి అనేది. అందుకని నేను మళ్ళీ క్యాబినెట్లో పెట్టి ఎట్లాగో ఆర్డినెన్స్ రావాలంటే వాళ్ళు క్యాబినెట్కి రావాలి, వచ్చే వరకు దీన్ని అభ్యాన్స్లో పెట్టి తర్వాత మాట్లాడాలని చెప్పాను. ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడిన తర్వాత इधर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण और सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मंगल को मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के लिए मेरे घर में चपरासी की जगह भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू गैर मेयारी जबान का इस्तेमाल करते हुए अपने किरदार को जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के बाद चंद्रबाबू नायडू को अपोजिशन कायद का ओहदा भी नहीं मिलेगा। बी सत्यनारायण ने इस्तफसार किया कि तेलुगुदेशम आखिर किस बुनियाद पर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हो सकती है, जबकि कांग्रेस के पास इंतखाबात में कामयाबी के लिए कई वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपने दौरे इख्तिदार में हुई गलतियों को कांग्रेस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वैट में कमी से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर के फैसले के बाद डी नागेंद्र के बयान पर तबसरा करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि अगर नागेंद्र को इस सिलसिले में वजाहत तलब करनी है तो वो काबीना के इजलास में इसे ज़ेरे बहस ला सकते हैं। साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने लोकसभा में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की जानिब से किए गए एहतजाज का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए दामोदर रेड्डी ने तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट को उनके इस इक़दाम पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अगर ज़िमनी इंतखाबात से पहले अलहदा तेलंगाना की तश्कील का अमल शुरू किया जाता है तो प्रकाल की नशिस्त की कामयाबी की जिम्मेदारी तेलंगाना कायदीन लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से अवाम के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये पूछे जाने पर कि सिर्फ परकाल की एक नशिस्त के लिए वो जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं, जबकि 17 नशिस्तों पर कांग्रेस को सख्त मुकाबला दरपेश है, जिस पर दामोदर रेड्डी ने कहा कि इस सिलसिले में आंध्रा सीमा के कायदीन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि पार्टी परकाल की नशिस्त पर मुकाबला करेगी। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि परकाल में भी महबूब नगर की कामयाबी दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना के मसले पर एहतजाज करते हुए सिर्फ ड्रामाबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। किशन रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर हैदराबाद के तबादले के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से नाजायज काबिजीन के खिलाफ कार्रवाइयों को देखते हुए उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर कलेक्टर को हटाया गया तो बीजेपी शदीद एहतजाज करेगी। सदर पीसीसी और सदर तेलुगुदेशम के दरमियान लफ्जी जंग पर तनकीद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि दोनों कायदीन सियासी उसूलों को बालाए ताक रखते हुए निचली सियासत पर उतर आए हैं। उन्होंने दोनों कायदीन से अवाम को गुमराह करने वाली ड्रामाबाजियों को बंद करने का मुतालबा किया। बीजेपी राष्ट्र కార్యవర్గ సమావేశాలలో చర్చించి సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ సీట్లలో బీజేపీ పోటీ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాము. మంచి వాతావరణం ఈరోజు తెలంగాణ జిల్లాలోనే కాదు, కోస్తా రాయలసీమ జిల్లాలలో బీజేపీకి పూర్తిగా అనుకూల వాతావరణం వస్తూ ఉంది. 1998లో ఏ రకమైనటువంటి వాతావరణం ఉండిందో ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర కాంగ్రెస్ ఆడుతున్నటువంటి నాటకం తప్ప ఇంకోటి కాదు. మేము తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం, అందుకని మా వాళ్ళని మేము సస్పెండ్ చేసినామని చెప్పి ఒక లైన్ ఇక్కడ చెప్పటం కొరకు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం తప్ప ఇంకోటి కాదు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ చేస్తున్నటువంటి, కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి ఆడుతున్నటువంటి నాటకాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. रियासती वजीर पसमानदा तबकात बी सरैया ने कहा है कि कांग्रेसी कायदीन अलहदा तेलंगाना के लिए टीआरएस से ज्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सरैया ने तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि मुअत्तली से हमारे अज़ाइम कम नहीं होंगे और हम तेलंगाना के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील अमल में आएगी। డిబేట్ జరిగింది, రిలీజ్ నడవని చెప్తాడు అంతే.
డోర్ మూసుకున్నట్టు కాదు, కూర్చొని ఉంటారు. డోర్ మూసు संगारेड्डी में हुए हालिया फसादात में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात का सामना कर रहे मकामी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने फसाद मुतासरीन के साथ वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से कैंप ऑफिस में मुलाकात की। जग्गा रेड्डी के हमराह करीब 150 मुतासरीन थे जिनकी दुकानात को बलवाइयों ने नुकसान पहुँचाया था। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने बताया कि संगारेड्डी में हुए वाक़यात में 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने 150 करोड़ रुपए की जो रिपोर्ट पेश की है वो सही नहीं है। जग्गा रेड्डी ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी करते हुए मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने 1 हफ्ते के अंदर इस मसले पर गौर करते हुए नुकसानात की पाबजाई का यकीन दिलाया है। దుకాణాలు కానివ్వండి, బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళ యొక్క ఆస్తి నష్టము జరిగింది. ఈరోజు దాదాపు 150 చిల్లర ఎవరైతే కాలిపోయినటువంటి దుకాణదారుల యొక్క వ్యాపారస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి యొక్క నివాసంలో మరి వాళ్ళందరినీ కూడా కలిపేయడం జరిగింది. జిల్లా కలెక్టర్ గారు 1,30,00,000 నష్టం కలిగిన 4 నివేదిక చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మళ్ళీ ఆ లిస్టు కూడా ఇది అవన్నీ కలిపి 2,50,00,000 వరకు నష్టం కలిగింది అని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక అందరి తరఫున మరి మెమోరాండం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. इंचार्ज कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन के लिए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदरगोड़ा में मुनक्किदा इस कैंप में मौसम गर्मा के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुताल्लिक़ मशवरे दिए गए। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन के लिए इस तरह के कैंप का इनेकाद फ़ायदेमंद साबित होगा। शहर की एक अदालत ने सूरी कत्ल केस के कलीदी मुलजिम भानों को 9 दिनों की CID तहवील में देने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने CID को भानों के साथ किसी भी तरह के 3rd डिग्री तरीक़ेकार का इस्तेमाल न करते हुए उसके वकील की मौजूदगी में पूछताछ की हिदायत दी। अदालत ने CID को यह भी हिदायत दी कि वो मई की 4 तारीख को भानों को अदालत में पेश करे। MM पहाड़ी के नशेबी इलाकों में रहने वालों को गुज़िश्ता 5 सालों से ड्रेनेज और बारिश के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि बालाई इलाकों से ड्रेनेज और बारिश का पानी बहकर उनके मकानों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से उनका घरों में रहना दुश्वार हो गया है और खुले मेन होल्स में छोटे बच्चे गिर रहे हैं। उन्होंने महकमे आबरसानी और बल्दिया की शिकायत करते हुए कहा कि कई दफ़ा इसकी शिकायत करने के बावजूद ओहदेदार टाल मटोल से काम ले रहे हैं, जबकि मुतल्लिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ भी इस मसले को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। वेस्ट जोन पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तिलाई जेवरात और चांदी की अशिया बरामद की। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने 23 अप्रैल को इंदिरा नगर के रहने वाले 44 साला अमामी राम पवन को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीश पर उसने बताया कि वह सुबह की इब्तदाई सातों में अपनी मोटरसाइकिल पर मंदिरों को जाता है और अपने आप को पुजारी जाहिर करता है। पुजारी को मशगूल देखकर मूर्ति के तिलाई और चांदी के जेवरात का सरखा किया करता है। उसने बताया कि वो सिर्फ कोकटपल्ली पुलिस हुदूद में ऐसी 13 वारदातें अंजाम दे चुका है और जेल से रिहा होने के बाद भी कई सरखे की वारदातें उसने अंजाम दी। हमारे एरिया में कैंसर हॉस्पिटल में एक टेम्पल था, उसकी जो भी ये ग्राम प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज करने के लिए बेगम बाजार गया था। हमको इन्फॉर्मेशन मिला है और इमीडिएटली हमारी टीम गए और उधर ये राम बाबू को पकड़ लिया तो उसके पास ये सिल्वर प्लेट जो भी टेम्पल में चोरी किया था उसके साथ है। सो उसके लाकर और इसको हाउस को भी सर्च किया है। ये इस केस के अलावा और 4 केसेस में भी 4 केस को भी एडमिट किया। उसके प्रॉपर्टी भी उसके घर में था। सो प्रॉपर पंचनामा से उसके घर से प्रॉपर्टी को सीज करके
आज इसको रिमांड कर रहे हैं। दबीरपुरे के रहने वाले 22 साला जहांगीर पाशा 12 मार्च 2010 से लापता हैं। उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और वो गूंगे भी हैं। गमजदा माँ बाप ने ख्वाहिश की है कि उनका लड़का किसी को नजर आ जाए तो दबीरपुरा पुलिस को मुत्तले करे। हसनाबाद संतोष नगर के रहने वाले 28 साला मोहम्मद जावेद लापता हो गए हैं। वो पेशे से दर्जी हैं। अपनी बहन के घर गए थे और वापस नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि संतोष नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एक पार्लिमानी और 18 असेंबली हलकों में ज़िमन इंतखाबात के लिए तवारीख का ऐलान। 12 जून को राय दी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। इंटरमीडिएट साल दूम के नताइज जारी। 58% मजमूई नतीजा। 23 में से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। फीस की आखिरी तारीख 5 मई। किरण कुमार रेड्डी को मनमानी फैसलों से गुरेज करना चाहिए। वैट में कमी से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर के फैसले पर वजीर लेबर को एतराज। और कांग्रेस और तेलुगुदेशम सरबराहों के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। गैर मयारी जबान इस्तेमाल न करने चंद्रबाबू नायडू को बोत्सा का मशवरा। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म हुआ। इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।